یہ صحافت میں کیسے آئے؟ خاندان میں ایک تو کوئی اتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا. یہ ناول نگار بھی ہے. اگر اس سے ہم پوچھیں کہ جی آپ کس حیثیت سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو، میں سمجھتا ہوں میں آج بھی رپورٹر ہوں. ہماری لیڈرشپ کیا خامیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ وہ قوم کو مطمئن نہیں کر پا رہے. وہ پیلی وردیاں پہنا کے ان کو سڑکوں پہ آ رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کو نا ہر حکمران نے جو ہے یا ہر ذمہ دار نے ڈنگ ٹپاؤ طریقے سے چلایا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کسی کو چلنے نہیں دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم سامعین و ناظرین. آج جو ہمارے مہمان ہیں انہیں وادی صحافت میں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے 35 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا. میں اب کیا کہتے ہیں نا کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. میری مراد ہیں میاں حبیب اللہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سب کیسے گزارے؟ بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور یہ اتنا لمبا سفر، صحافتی سفر جو ہے، اتنے اداروں میں آپ نے کام کیا. میں نام بھی لے لیتا لیکن یہ ہے کہ وہ پھر میری تمہید جو ہے نا وہ بڑی لمبی ہو جاتی. تو یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ اپنے اسکول کے زمانے سے ذرا تھوڑا سا آئیں، یہ صحافت میں کیسے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عابد کمالوی صاحب، کمال کر دیا آپ نے جناب. میرا تعارف جو کروایا میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میں نے جو سمجھا ہے نا زندگی کو اور جو پروفیشنل لائف کو، کمالوی صاحب میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. وہ انسان نے کس طرف جانا ہے، اس کے ذمے کیا کام ہے، اس نے زندگی میں کیا امور سر انجام دینے ہیں، یہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں. جی بالکل. اور یقین کریں کہ میرے خاندان میں ایک تو کوئی اتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا اور دوسرا کبھی کسی نے کوئی ملازمت نہیں کی تھی. تو میں خاندان کا واحد آدمی تھا. کاروبار ہے کھیتی باڑی سے؟ کھیتی باڑی سے. کہ میں خاندان کا پہلا فرد تھا جس نے گریجویشن کی اور جس نے باقاعدہ ملازمت کی. ورنہ خاندان میں کبھی یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی فرد جو ہے وہ ملازمت کرے گا اور اس کو مایوب سمجھا جائے. اور ملازمت بھی آپ نے وادی خارزار جو ہے صحافت کی وادی خارزار اس میں کی، وہ ہم آپ سے پوچھیں گے. اور یقین کریں کہ وہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نا، تو وہ زمانہ تھا بہت ہی ابتدا میں. مجھے یاد آتا ہے کہ میں جب کھیتوں میں کوئی کاغذ اڑتا ہوا اخبار کا ٹکڑا دیکھتا تھا تو میں پکڑ کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتا تھا. اور پھر زمانہ طلبہ علمی میں جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو باقاعدہ طور پر میں جو ہے اخبار کا قاری تھا اور میں نے باقاعدہ کسی ہوٹل پہ جا کے جہاں اخبار آتا تھا گھر کے تھوڑا سا پاس، وہاں جا کے اخبار پڑھنا اور مکمل اخبار پڑھ کے نا پھر اس کو رکھنا. تو اس کے بعد پھر میں نے کس کلاس سے آپ نے شروع کیا؟ 5ویں 6ٹھی کلاس سے، اس وقت کا دور کی بات کر رہا ہوں میں. اور پھر مجھے اچانک ایک کام کے سلسلے میں مجھے جانا پڑ گیا جنگ اخبار کے دفتر. یہ 87 کی بات ہے. تو میں پھر جناب ضیاء شاہ صاحب اور خشونت علی خان صاحب کے پیچھے پڑ گیا. وہ کسی تعلق کی بیس پر میں ان کے پاس گیا تھا کام کے سلسلہ میں. میں نے کہا جی میں نے جرنلسٹ بننا ہے. تو وہ انہوں نے مجھے بڑے چکر دیے لیکن میں بڑا مستقل مزاج تھا. میں نے کہا جی اگر کرنی ہے تو جرنلزم ہی کرنی ہے. اور پھر 88 کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، ضیاء الحق نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تو جنگ میں ایک ایڈ آیا کہ انہیں الیکشن رپورٹر چاہیے. تو اس میں نے باقاعدہ انٹرویو اور ٹیسٹ دیا، اس میں کلیئر کر کے تو میں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز جو ہے وہ ایک الیکشن رپورٹر سے کیا، روزنامہ جنگ سے. ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ ایک کالم نگار ہے، وہ شاعر بھی ہے، وہ ناول نگار بھی ہے. اگر اس سے ہم پوچھیں کہ جی آپ کس حیثیت سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو متعارف کروانا چاہیں گے؟ آپ نے صحافت کے مختلف شعبوں میں کام کیا، آپ نے انٹرویو بھی کیے، آپ نے رپورٹنگ بھی کی، آپ نے ایڈیٹنگ بھی کی، آپ نے
क्या हम कह सकते हैं कि स्पेशलिटी जो है वो किस शोबे में आपको? मैं समझता हूँ मैं आज भी रिपोर्टर हूँ, और बुनियादी तौर पर अखबार की जो रीढ़ की हड्डी है ना वो रिपोर्टिंग है, बिल्कुल। और जो थ्रिल उसमें है इंफॉर्मेशन की, और जो तजस्सुस होता है आपको खबर डिग करने का, वो जो है ना सहाफत के एक तुर्रा इम्तियाज है। तो मुझे आज भी रिपोर्टिंग करना पसंद है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कॉलम में भी कोई इंफॉर्मेटिव किस्म की बात करूँ, मैं अपने तज्जिए में भी जो है वो इंफॉर्मेशन का रंग जो है वो देने की कोशिश करता हूँ लोगों को, ताकि लोगों को बात समझ आ जाए कि असल में हो क्या रहा है। तो रात ही एक टीवी चैनल में मुझे मदऊ किया गया था, तो उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े चिल नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी कि और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो बड़े चीख चिंगाड़ रहे हैं। मैंने कहा जी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ समझते हैं कि उन्होंने गल उत्ते हो गई है, हाँ। तो इस करके वो चुप ने, खामोश ने, उन्होंने पता ये सब आप खुद ही इस तरफ आ गए हैं। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि आपने बेशुमार सियासतदानों से आपकी मुलाकातें हैं, मैंने आपका वो तारुफ जो है वो देखा है, वो मैं अपने नाज़रीन को अगर कराना चाहूँ तो उसमें खासा टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है जब से आप सहाफत में आए, उससे पहले और उसके बाद सियासत में आने वाले बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकातें, उन बातें, इंटरव्यूज और मुख्तलिफ हैसियतों में आपने उनसे जो है ना वो सहाफत जो है वो अपनी वो की है। अच्छा, एक होता है सियासतदान और एक होता है लीडर। तो अब तक जो हमारी लाट है पूरी आई है सियासत में या जमहूरियत में, तो उसमें लीडर आप किसको समझते हैं कि कौन लीडर था? देखिए मुझे ना मेरी जिंदगी, सहाफती जिंदगी से पहले एक लीडर गुजरा है जिसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसके पीछे अवाम थी, और दूसरा लीडर मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान है जिसके पीछे अवाम है। बाकी सारे एडजस्टमेंट की पैदावार हैं, और लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में देखिए लीडर वो होता है जिससे अवाम मुतमईन हो, जिस पर अवाम इत्मीनान करते हो, लेकिन ना जाने क्या वजह है हमारी लीडरशिप में क्या खामियां और कोताहियां हैं कि वो कौम को मुतमईन नहीं कर पा रहे। बशमूल के जुल्फिकार अली भुट्टो के पीछे बहुत ज्यादा अवाम थे, इमरान खान के पीछे भी बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम एक बेजारी जो है वो मुझे दिखाई देती है, और वो तशन्नुगी जो है वो बरकरार है, वो कोई भी लीडर उसको पूरा नहीं कर सका। और शायद मेरा ख्याल है कि कौम को एक लीडरशिप की जो है ना वो ताहाल तलाश है। अच्छा, तो मतलब इस वक्त लम्हे मौजूद में आप कोई लीडर नहीं देख रहे जो कौम को कोई ऐसा रास्ता दिखाए जो खुशहाली की तरफ जाए, जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाए? असल में बदकिस्मती ये है कि हमारी लीडरशिप जो है ना उनको अपनी नाक से आगे कोई चीज नजर नहीं आती। ये मफादात की लीडरशिप है। देखिए लीडर ये नहीं होता, लीडर होता है कौम को राह दिखाने वाला, कौम को लेके जाने वाला। देखिए लीडरशिप थी चाइना के पास, ठीक है, और उन्होंने देख लें कि 40 साल में 75 करोड़ लोग जो हैं उनको खतरा गुर्बत से ऊपर ले आए हैं, गुर्बत की लकीर से ऊपर लेकर आए हैं, उनकी जिंदगियां बदल दी हैं। उन्होंने एक जो दुदकारी हुई कौम थी, जो नशई समझे जाते थे, उनको दुनिया की अव्वल तरीन कौम बना दिया उन्होंने। तो ये लीडरशिप होती है। वो लीडरशिप जो है वो तब्दीली का नाम है, वो आपकी जिंदगियों में जो है आपको राय रास्त पर लाने के लिए आपके ये तरक्की सिर्फ पैसे की तरक्की नहीं होती, आपकी अखलाकी तरक्की भी होती है। और जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अच्छा, ये जमहूरियत के साथ साथ मैंने देखा है कि कुछ जो कस्टोडियंस हैं मुल्क में जो होते हैं वो ऊपर रहे, नीचे जमहूरी लोग थे, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग थे, इस तरह की हुकूमतें भी मैंने देखी। तो ये मतलब देखा है। और फिर हमने देखा कि ये बल्दिया के मुलाजम हैं, वो पीली वर्दियां पहना के उनको सड़कों पे आ रहे हैं, वो पता चल रहा है कि ये बल्दिया के लोग हैं, और फिर दफातर की हाजिरी चेक हो रही है। अच्छा, मैंने फिर पूछा वो उनसे जो कस्टोडियन है हमारे मुल्क के, जो हमेशा से हमारे आ रहे हैं, मैं तो कस्टोडियन कहूंगा उन्हें, तो वो मैंने कहा जी कि आप किस तरह से ये चेक कर लेंगे हाजिरी। उनके एक अफसर को मैंने कहा भैया वक्त चूंकि 8 बजे दफ्तर खुलते हैं तो आपने 10 दफ्तरों की हाजिरी चेक करनी है। कहते जी हमने जो है ना वो 7:30 बजे से ऑनवर्ड एक एक बंदा जो है ना वो अपना उतार दिया स्कूलों के आगे और दफ्तरों के आगे। जो ही 7 बजकर
यानी 56 या 57 मिनट होंगे, वो बंदा अंदर चला गए, दफ्तर में एंटर करेगा और 8 बजे वो रजिस्टर हाजिरी जो है ना वो उठा लेगा और देखेगा कि कौन कौन लोग आए। फिर जो लोग नहीं आए थे, जो गैर हाजिर थे, उन्होंने भल सफाई पे लगा दिया। आपको याद होगा वाही साहब ने, जो गुलाम हैदर वाही वजीर आला थे, उन्होंने भल सफाई की थी। तो ये फर्क है। तो क्या जमहूरी निजाम जो है वो भी नहीं डिलीवर कर पाया हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में और लोगों की खुशहाली में? असल में बात यह है मौलवी साहब कि आपको भी माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है, आपने भी बहुत करीब से ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचा है। बात यह है कि पाकिस्तान को ना हर हुक्मरान ने जो है या हर ज़िम्मेदार ने डंग टपाऊ तरीके से चलाया है। कुछ देखें दुनिया में ये ऐसे नहीं होता, यहाँ पाकिस्तान का सारा सिस्टम शख्सियात के गिर्द घूमता हाँ, है। बहुत अच्छी बात। सिस्टम कोई नहीं है पाकिस्तान में, शख्सियत परस्ती है, शख्सियत परस्ती है, सिस्टम कोई नहीं है। दुनिया में सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, हर चीज सिस्टम के ताबे चलती है। निज़ाम कुदरत एक सिस्टम है और वो सिस्टम से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से जहां पायदार जमहूरियत है, जहां पायदार तरक्की है, वहां सिस्टम काम करते हैं। पाकिस्तान में हर हुक्मरान ने डंग टपाऊ काम किया, तो आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान को खुदारा डंग टपाऊ तरीके से ना चलाएं। ये 25 करोड़ 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसको अब भी हमें होश आ जाना चाहिए। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती है कि आप देखें कि हर 2-4 साल बाद 5 साल बाद जो है हम एक नया तजर्बा करना शुरू कर देते हैं। एक चीज जो है वो थोड़ी सी पनपना शुरू होती है तो हम जो है वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो मामला बहुत खराब हो गया, ये इसको नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह से चलाना शुरू कर दें। यही हाल हमारे प्रोजेक्ट्स का है। तो इस तरीके से कभी काम नहीं चलेगा। एक तो मुनाफिकों का माशरा, ये हर बंदा जो है यहाँ मुनाफिकत करता है, ब्लैकमेलर है। हर यहाँ बजाय ये कि आप कोई क्रिएटिविटी करें, कोई मुस्बत चीजें जो है वो सामने लेकर आए। होता यह है कि हम हर बंदा यहाँ दूसरे बंदे की एक कमजोरियां तलाश करता है और फिर उस कमजोरियों को सामने रखकर उसको ब्लैकमेल करता है। तो इस तरीके से कभी भी माशरे जो है वो तरक्की नहीं करते, ना ही वो पायदार माशरे कहलाते हैं। तो पाकिस्तान का बदकिस्मती से हाल यहाँ तक जो पहुंचा है उसकी बुनियादी जो खराबी है वो है यही कि हमारे यहाँ तसलसल नाम की तो चीज है ही नहीं। मजहब इसी कौम के जो दिमाग थे, उन्होंने एटम बम बनाया और पाकिस्तान की पहली जो दुनिया की पहली जो एटमी कुव्वत है वो पाकिस्तान को वो शरफ हासिल हुआ। जब हम एटमी कुव्वत बन सकते हैं, शाहीन बना सकते हैं, गौरी मिसाइल बन गए और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है। अच्छा, तो ये सारा हो सकता है, तो ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता था? ये क्यों नहीं बना? आपने कुछ तो बता दिया है। तो इसके लिए हमें कोई आप तजवीज दें। हमारे कौमी रहनुमाओं को जो आते हैं वो कहते हैं ना जमहूरियत एक बहुत बड़ा इंतकाम है। आखिर जमहूरियत कब इंतकाम लेगी और कब उन लोगों को सामने लाएगी जो इस मुल्क को ऊपर लेके जाएंगे? 76 साल तो हो रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे तो एक पूरी सदी होने को जा रही है। मैंने 35 साल जो है ना वो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में जो है ना बेशुमार मामलात, वाकयात और पसे पर्दा हकाइक का जो है ना यानी शाहिद हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ होते हुए देखा है। जो इक़्तिदार की राहदारी है वहाँ मैंने बड़ी साजिशें देखी हैं, मैंने लोगों के ईमान बिकते देखे हैं, मैंने जो है मजबूरियां लोगों की देखी हैं। लेकिन असल मामला जो है ना, ये आपने कहा कि किस तरीके से ये बेहतरी हो सकती है, कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। एक तो देखें कि हमारे यहाँ जो है ना कोई भी निज़ाम जो है या मामला जो है या सिस्टम जो है वो उसमें जो है वो खालस नहीं है। खालस्तन जो है कोई भी एक सिस्टम आप ले हैं और उसको फॉलो करें। देखिए पाकिस्तान में कहने को पार्लिमानी जमहूरियत है पाकिस्तान में, लेकिन उसमें देखें अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं। जिस तरह मियाँ बीवी हैं और उनके बगैर गुजारा नहीं, सिस्टम चल ही नहीं सकता। इसी तरीके से पार्लिमानी सिस्टम जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के बगैर चल नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो पार्लिमानी जमहूरियत है वो एक दूसरे की मुखालफत, एक दूसरे की दुश्मनी और एक दूसरे से अदम तावन का नाम कोई ऐसा नाम आपके ज़हन में आ रहा है हमारी वादी सियासत में कि जिसके बारे में आप समझते हो कि वो बड़े ठीक थे? और उन्होंने, हमने तो यही देखा है कि कुछ मतलब जब ये दौर आते हैं तो कुछ माफियाज ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं।
लैंड माफिया है, और मतलब है कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग है, और चीजें बेशुमार इस तरह की चीजें आती हैं, बदनामी का बायस बनती हैं, हमारी मौजूद अदालतों का वक्त ज़ाय होता है, अदारों का वक्त ज़ाय होता है इन कामों में। तो ये कब ठीक होगा? कोई आपने कोई ऐसे कोई है जब आपकी कोई है नहीं कोई इसमें जो इस वक्त लॉट है हमारे पास, या आप देख रहे हैं कि जो मुस्तकबिल में मैं आपको बताऊं, आने वाली है? बात यह है कि आप ना इस सिस्टम में ये जो इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, जी जी इसमें आप फरिश्ते भी लाके बिठा देना तो वो भी नाकाम हो जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह है कि आप किसी को चलने नहीं देते, ठीक है। आप हर चीज में जो है वो खलवाड़ पैदा करते हैं, हर चीज में मुनाफिकत है, हर चीज में ब्लैकमेलिंग है। तो आपके तो यहाँ दूध खालिस नहीं मिलता, आपकी मिर्चें खालिस नहीं है, आप हुकूमत खालिस कह रहे हैं और सिस्टम खालिस कह रहे हैं जो ये चला ले। तो मुझे तो इसका मतलब वो जो हुकूमत होती है जिसके दौर में दूध खालिश नहीं मिलता, बच्चों का दूध खालिश नहीं, खुराकें खालिश नहीं है, और चीजें खालिश नहीं है, तो इसका मतलब है रेट नहीं है गवर्नमेंट की। बिल्कुल तो अगर जमहूरियत है उसकी रेट नहीं, या और कोई निजाम है उसकी रेट नहीं, मेरी बात कौन सी हुकूमत है? मैं आज आपको बताता हूँ मौलवी साहब, तो क्या होना चाहिए? ये अभी निगरान हुकूमत चल रही है। मुझे मर्ज का इलाज बताएं। मैं आपको बताता हूँ, अभी निगरान हुकूमत चल रही है। मैं एक मुद्दे वतन शहरी हूँ, मैंने किताबें लिखी हैं, हमने मिली नगमें लिख दी हैं, मेरा सब कुछ पाकिस्तान मेरी पूरी किताब है, हमने इस मुल्क की जुगलियां लिखी हैं। आखिर ये मुल्क कब ठीक होगा? आप बिल्कुल, जो आपका दुख है ना, ये पाकिस्तान के आम आदमी का दुख है। और आज यकीन करें कि लोग जो है ना इतने बेजार हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान से जिंदा भाग। आज पाकिस्तान, हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल हमें नजर नहीं आता। तो आप इसका अंदाजा यहां से लगाएं कि पासपोर्ट ऑफिस में लाइनें लगी और 5 लाख लोग जो हैं वो पासपोर्ट के लिए उनके कागजात जमा, उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल रहे। ये सूरत हाल है आपकी। तो हर बंदा यहाँ से चाहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से बात, क्योंकि उसको यहाँ अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ जैसी वो कहाँ होती है? हुकूमत है नहीं ना। वो हमने एक दौर देखा है कि एक नीली बत्ती वाली जीप आती थी, तो जितने रेडियां इंक्रोचमेंट है वो ऐसे भागते थे, थोड़ा सा वो दौर आपने ना थोड़ा देखा आपने खौफ खत्म कर दिया लोगों में। अब ना हर बंदे को पता है कि का होना है, अपनी मर्जी के रेट बने हुए हैं। हर बंदा जो है वो अपनी फीस देता है, एक भत्ता देता है, और वो अपनी मनमानी करता है। तो मनमानियों से कभी मुल्क नहीं चलते, ना कभी बेहतर होते हैं मनमानियों से मुल्क। वो सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, और उसमें जैद बकर हर के लिए एक जैसा सिस्टम हो तो फिर मामला बेहतर होते हैं। जब आपको पता है कि मैं जो जितना बड़ा जुर्म कर लूं, मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं मैनेज कर लूंगा। जिस मुल्क में जस्टिस फॉर सेल हो, आप 2 करोड़ का वकील कर लें, आपको सजा हो ही नहीं सकती। पवित्र है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई पूछ नहीं सकता। तो इस मुल्क में किसी एक बंदे को मुझे बता दे कि उसने जुर्म किया था, उसको सजा। अच्छा, इसके अलावा साथ देखें, पुलिस एक मामूली महकमा है, इस सिस्टम का एक ऑर्गन है। उसमें किसी एक मुलाजम को उसने, कितने पुलिस तशद्दुद से लोग मर जाते हैं। मुझे एक बता दें कि फलां बंदे को सजाए मौत हुई थी, उसको फांसी पे लटका दिया गया था, तो मुझे नीची जगह पे बिठा लीजिएगा। तो जिस मुल्क में ये सिस्टम हो, वहां आप किस किस्म की बातें करते हैं? अच्छा, राह अमल दिखानी होती है, ये जो हमारे ज़राए इब्लाग, सीधी सी बात है, उन्होंने गलतियां भी बतानी होती हैं, इस्लाह भी बतानी होती हैं। तो क्या ख्याल है, आप माशाल्लाह 35 साल 40 साल का एक सफर है, बहुत बड़ा सफर है सहाफत का, आपने बहुत अदवार देखे हैं। तो क्या ये हमारा जो मीडिया है, ये भी हुक्मरानों को कोई ऐसी राह अमल, ये अपना रोल प्ले कर रहा है? नहीं, वैसे करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ मौलवी साहब, जब सवाल आता है ना तो वो हर शोबों पे आता है, वो किसी एक शोबे पे नहीं आता। और जब माशरे उठते हैं ना, तब फिर उसके तमाम कुल पुर्जे जो हैं वो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का हर शोबा जो है ना वो ज़वाल का शिकार है। तो मीडिया भी उस ज़वाल में जो है ना बह चुका है। तो मियां हबीबुल्लाह साहब से मैंने बहुत सवालात कर रहे थे, अभी तो मेरे सवालात सारे पड़े हुए थे, सहाफत के हवाले से, कॉलम निगारी के हवाले से, सहाफत में नए आने वालों के हवाले से, और जो इनके साथ जो जिन शख्सियात से मुलाकातें की हैं, और जिन और बहुत से इनके सीने में राज हैं, तो हम इनके साथ एक और विशेष इंशाल्लाह रखेंगे, उसमें मियां साहब से खासी बातें जो हैं होंगी। आखिर में मैं यही दुआ करता हूं कि पाकिस्तान के लिए, मादरे वतन के लिए, कि अमन मिले तेरे बच्चों को, और इंसाफ मिले, दूध मिले चांदी सा उजला, पानी साफ मिले, अपना
اپنے ارد گرد کا اور پیارے وطن پاکستان کا بہت خیال کیجیے. اللہ نگہبان.